Good morning, dear children. I, T.N. Bharti, welcome you to this new class. Today we are going to start a new unit, unit number 2, and a new lesson, lesson number 3, which is the name of the lesson is teamwork. Okay? तो आज हम लोग टीम वर्क के बारे में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू दिस यूनिट. What uh, what is the purpose of this unit? What we will learn through this unit? We will learn about teamwork, how to work in a team, what are the benefits of teamwork, and uh, collaboration, working ethics, working on time. It means punctuality. You will learn so many things which we need in teamwork. Okay, cooperation, collaboration, understanding. These things you will understand. Okay, so let's begin. First of all, I would like to tell you the meaning of this lesson. Okay, see. So let's start. Teamwork, teamwork. Together we can make our dream work. Then we'll share the joy of what we have done. Teamwork, everyone. Teamwork, teamwork. Working in a group is called teamwork. Okay, working in a group. When we do a task, when we complete a task in a group, that is called a teamwork. टुगेदर वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क. हम सभी लोग मिल करके, टुगेदर मीन्स आपस में, टुगेदर वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क. हम लोग आपस में मिलजुल कर एक काम को बेहतर तरीके से और मुश्किल से मुश्किल काम को आसान तरीके से कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड ड्रीम वर्क. ओके, कि जो हमने सोचा हुआ है वैसे ही हम उस काम को कर सकते हैं. देन वी विल शेयर द जॉय ऑफ व्हाट वी हैव डन. टीम वर्क एवरीवन. ठीक है. देन वी विल शेयर द जॉय ऑफ व्हाट वी हैव डन. अब उसमें क्या करते हैं हम लोग, इस तरह से हम लोग उस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से इंजॉय कर पाते हैं जो काम हम लोग कर रहे होते हैं, है ना. उस काम को जो हम लोग कर रहे होते हैं टीम वर्क में क्या होता है कि हम लोग एंजॉय भी करते हैं उस काम को. और उसके बाद क्या होता है, इसमें लास्ट लाइन देखिए, ये जो लिखा है टीम वर्क एवरीवन. दिस लाइन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. यू मे अंडरस्टैंड दैट टीम वर्क एवरीवन. एवरीवन, अब देखिए टीम वर्क एवरीवन, इनका अलग अलग मीनिंग निकालेंगे. टीम वर्क का तो वर्किंग इन अ ग्रुप, और एवरीवन का मतलब सभी लोग. लेकिन जब these two words when make a line, it creates another meaning which is very much different from these individual meanings. इन दोनों के अलग अलग मीनिंग से इस लाइन की मीनिंग का बहुत ही अलग है. इस लाइन की मीनिंग है टीम वर्क एवरीवन. टीम वर्क में अब इसकी इस लाइन की मीनिंग हो जाएगी कि टीम वर्क में ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द टीम इज इक्वली इंपॉर्टेंट. ओके, वी शुड गिव इंपॉर्टेंस टू ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द टीम. अब कई बार क्या होता है, कई बच्चे होते हैं खेल रहे होते हैं, तो मान लो कोई गेम हो रहा है, अगर क्रिकेट ही हो रहा है, हमने ज्यादा रन्स मार दिए तो कहते हैं हमारी वजह से टीम जीती. तो कोई कहता है कि नहीं, वो मैंने कैच ले लिया इसलिए टीम जीती. बॉलर कहेगा नहीं, मैंने बॉलिंग अच्छी कर दी इसलिए जीती. प्यारे बच्चों, इन अ टीम, when you are working in a team, each and every member is equally important, and we should give importance, we should respect each and every member. We should not call anyone that you have not contributed well. Okay, तो then we will share the joy of what we have done. और इस तरह से जब हम लोग आपस में मिलजुल के एक दूसरे को म्यूचुअल रिस्पेक्ट देंगे तो हम उस काम को एंजॉय कर पाएंगे. Now come to the next paragraph. It's fun to shoot the basketball through the hoop. It's fun to shoot basketball through the hoop if nobody passes, but if nobody passes, then nobody shoots. And the relay race, देखिए इसको आप लोग एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा. Relay race. And the relay race just can't go on if nobody wants to pass the baton. एक बार फिर से पढ़ के सुना देता हूँ. It's fun to shoot the basketball through the hoop, but if nobody passes, then nobody shoots. And the relay race just can't go on if nobody wants to pass the baton. Okay? See, if nobody wants to pass the baton. अब पहली दो लाइन की मीनिंग हम समझते हैं. It's fun to shoot the basketball through the hoop, but if nobody passes, then nobody shoots.
it's very much joyful when we shoot the basketball through the hoop. What is hoop? Hoop is the ring in which we shoot the basketball. Okay, and points gets counted. जब पॉइंट हम लोग बास्केटबॉल में उस हुप के थ्रू बॉल को पास कराते हैं तो हमारा पॉइंट मिलता है, ठीक है। तो क्या हो गया, तो इट्स वेरी मच enjoying, इट्स गिव्स अस जॉय, feeling of joy when we pass the basketball through the hoop. But if nobody passes, then nobody shoots. In basketball, we see that ball is passed through the players. One player passes to another, and that player passes to another player, and finally someone shoots the ball. ओके, तो अगर एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को अगर बॉल पास नहीं करेगा तो उसको शूट कैसे करेगा? फिर तो आपसे आप अकेले खेलेंगे तो सामने वाली टीम के प्लेयर्स मिलके आपसे बॉल ले लेंगे, तो आप शूट नहीं कर पाएंगे। ओके, इट शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ कोलेबरेशन, कोऑपरेशन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ओके, इस लाइन से हमें पता चलता है कि हमें कोऑपरेशन कितनी जरूरी है, हम समय को देखते हुए उस बॉल को आगे बढ़ा दें, ठीक है। ये नहीं कि मैं ही शूट करूंगा, दैट दिस डजंट शो कोऑपरेशन, इट शोज दैट यू आर इगोइस्टिक, self centric. Okay, then it is important to work with cooperation in a team. अब अगली दो लाइन पढ़ते हैं, एंड द रिले रेस just can't go on if nobody wants to pass the baton. First of all, I would like to tell you the meaning of relay race. Relay race, see, relay race, a game in which there are it is a kind of race in which एक क्या होता है, एक प्लेयर, जैसे मान लीजिए 5 प्लेयर हैं एक टीम में, तो पांचों प्लेयर कुछ दूरी पर, बराबर दूरी पर खड़े होंगे और एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को ले जाके वो बैटॉन पकड़ाएगा, अगला प्लेयर अगले प्लेयर को बैटॉन पकड़ाएगा। तो ये क्या होता है, हर टीम अपने अपने प्लेयर को अगले प्लेयर के पास भेजती रहती है, अपनी ही टीम के। तो जो टीम के प्लेयर्स के बीच में अच्छी कोऑपरेशन होती है वो स्टिक को जल्दी से पकड़ा देते हैं और अगला वाला जल्दी से बैटॉन पकड़ के भागते हुए अपनी टीम के अगले प्लेयर को देता है और रेस वो कंप्लीट की जाती है। तो जिसमें कोऑपरेशन अच्छा होता है, हर प्लेयर उसमें स्ट्रांग चाहिए, एक भी कड़ी अगर कमजोर पड़ेगी तो वो टीम हार जाएगी। तो ये वो चीज है कि एवरी मेंबर शुड कंट्रीब्यूट वेल एंड इक्वली। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं इस लाइन को, एंड द रिले रेस जस्ट कांट गो ऑन, रिले रेस तो हो ही नहीं सकती इफ नो बडी वॉन्ट्स टू पास द बैटॉन, अगर एक प्लेयर चाहे कि मैं बैटॉन को आगे ना बढ़ाऊं, वो जो स्टिक है वो मैं अगले प्लेयर को ना दूं, तो रिले रेस हो ही नहीं पाएगी। एंड फाइनल, लेट्स रीड द फाइनल पैराग्राफ। We are the parts that make up the whole, and we have got our eyes on a common goal. Sometimes it can be a big plus when you or a me becomes an us. फिर से पढ़ के सुना देता हूं आपको, लेट्स रीड इट अगेन। वी आर द पार्ट्स दैट मेक अप द होल। इसमें देखिए, यहां पर आप लोग जब पढ़ते हैं तो ये जो आगे का फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट लेटर है W, इट इज साइलेंट। ओके, W इज साइलेंट। सी, we are the parts that make up the whole, and we have got our eyes on a common goal. Sometimes it can be a big plus when you or a me becomes an us. Dear children, this paragraph is very much important and gives you the moral of this poem. We are the part that make up the whole. We are each member of the team. The poet is saying that each member of the team is a part which makes up the whole, which makes up the complete team. Without adding any member of the team cannot be completed. Okay, and we have got our eyes on a common goal. और सभी लोगों का एक कॉमन गोल होता है, मतलब सभी लोगों का एक विशेष उद्देश्य होता है, सभी लोग मिलजुल के उसी काम को करते हैं, एक ही काम के लिए वो टीम बनती है। जैसे लेट्स इमेजिन एक क्रिकेट टीम बनती है, क्या उस क्रिकेट टीम का उद्देश्य होता है कि हमको वो गेम जीतना है, ठीक है। समटाइम्स इट कैन बी अ बिग प्लस when a you or a me becomes an us.
ओके, अब देखिए, समटाइम्स इट कैन बी अ बिग प्लस व्हेन यू और मी बिकम्स एन अस। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग जब आपस में एक टीम बना लेते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। और जब मैं और तुम मिलकर हम हो जाते हैं, ठीक है, बिकम्स एन अस। यहाँ पर यू, मी एंड अस, ये सारे प्रोनाउंस हैं, ठीक है, ये सारे प्रोनाउन हैं। और जब तुम और मैं मिलकर के हम हो जाते हैं तो हम सब मिलकर के एक बेहतर काम को बेहतर तरीके से कर पाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एक बार मैं फिर से आपको ये लेसन रिवाइज करा देता हूँ। ऊपर चलते हैं और देखते हैं। Let's sing and dance. Teamwork, teamwork. Together we can make our dream work. Then we will share the joy of what we have done. Teamwork, everyone. Teamwork, teamwork. Working in a group. Together we can make our dream work. इस तरीके से टीम वर्क में हम एक मुश्किल काम को बेहद आसान तरीके से और बेहतर ढंग से कर पाते हैं। Then we will share the joy of what we have done. और इस तरह से सभी लोग मिल करके जो काम होता है उसके इंजॉयमेंट को शेयर कर पाते हैं, उसके आनंद को मिल करके एंजॉय कर पाते हैं। टीम वर्क एवरीवन, टीम वर्क में सभी लोग इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। इट्स फन टू शूट द बास्केटबॉल थ्रू द हुप, इफ नोबडी पासेस देन नोबडी शूट्स, एंड द रिले रेस जस्ट कांट गो ऑन इफ नोबडी वांट्स टू पास द बैट ऑन। सी द रिले रेस तो अब देखिए सबसे पहले इस पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन, इट्स फन टू शूट द बास्केटबॉल थ्रू द हुप। बास्केटबॉल को हुप के थ्रू पास कराना तो बहुत इंजॉयमेंट वाला है, लेकिन अगर कोई पास ही ना करे तो बास्केटबॉल जो है शूट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो उस फाइनल प्लेयर तक जो बास्केटबॉल के हुप के नजदीक है वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। ठीक है, एंड द रिले रेस जस्ट कांट गो ऑन इफ नोबडी वांट्स टू पास द बैट ऑन। अगर वो जो स्टिक है रिले रेस वाली, अगर कोई एक भी प्लेयर पास ना करना चाहे तो वो आगे नहीं बढ़ा पाएगा और रिले रेस हो ही नहीं पाएगी। वी आर द पार्ट्स दैट मेक अप द होल एंड वी हैव गॉट आवर आईज ऑन अ कॉमन गोल। समटाइम्स इट कैन बी अ बिग प्लस व्हेन यू और अ मी बिकम्स एन अस। हम लोग मिलजुल करके सभी लोग मिलजुल करके एक टीम का निर्माण करते हैं और सभी लोगों का जो उद्देश्य होता है, कॉमन गोल होता है, एक सामान्य उद्देश्य होता है सभी लोगों का, कि उस उद्देश्य को सभी लोगों को मिल करके अचीव करना है। कोई काम सभी लोगों को मिलजुल करके करना है। प्यारे बच्चों, समटाइम्स इट कैन बी अ बिग प्लस व्हेन अ यू और अ मी बिकम्स एन अस। कभी आप और हम, आप और मैं मिल करके एक हम का जो निर्माण करते हैं वो मिल करके एक बहुत बड़ा प्लस होता है, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होता है। ठीक है, तो इस पोयम से द मोरल ऑफ द पोयम इज वी शुड रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ टीम, वी शुड कोऑपरेट विथ ईच अदर, we should give importance to each and every member of the team, we should help each other, we should work with team feeling, okay, team spirit, which is called team spirit, which we must have team spirit. These are the feelings which we must have, okay. Self-centric, becoming self-centric is not an option in a team, okay. Your ego doesn't work in a team, okay. It makes you a good person. Now come to the new words. न्यू वर्ड्स, टीम वर्क। टीम वर्क मीन्स कंबाइंड एफर्ट ऑफ अ टीम, पूरी टीम मिलकर काम करती है तो टीम वर्क होता है। हुप, वुडन और आयरन रिंग टर्नल्ड अलोंग बाय चाइल्ड। अब वुडन और आयरन रिंग जो होती है वो जिसके थ्रू बास्केटबॉल को पास कराते हैं हम लोग। पासिस मीन्स मूव ऑनवर्ड, ठीक है। पासिस मीन्स क्या होता है? मूव ऑनवर्ड, किसी भी चीज को आगे बढ़ाना, पासिंग। रिले रेस, मैंने आपको रिले रेस के बारे में ऑलरेडी बता दिया है कि एक गेम जिसमें एक प्लेयर दौड़ता हुआ बैटन को आगे पकड़ाता है। बैटन क्या होता है? शॉर्ट ट्यूब और स्टिक कैरिड इन रिले रेस। तो वो जो स्टिक होती है रिले रेस वाली, जिसको दौड़ के हम लोग अगले प्लेयर को पकड़ाते हैं जिससे कि वो आगे भाग करके पहुंच सके। Dear children, this lesson, reading of this lesson is complete now. Tomorrow we will complete the question and answer of this lesson. तब तक के लिए आप लोग इस रीडिंग का लेसन की रीडिंग को ध्यान से करेंगे। एक एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन आपका क्लियर होना चाहिए। यू मस्ट लर्न द न्यू वर्ड्स एंड लर्न द मोरल ऑफ दिस स्टोरी विच इज आवर अल्टीमेट गोल। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू चिल्ड्रन।